Hi, dear friends. Belated wish you all a happy Diwali and happy New Year. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSC Economics, Chapter 3B, that is Elasticity of Demand. Dear friends, before some of the sessions, we have already started with our Chapter 3B, and that is Elasticity. It refers to any rise or fall in demand of any commodity or service as a result of change in price or any other factor. कोई भी चीज का डिमांड अगर राइज या फॉल बढ़े या कम हो, उसके रीजंस जो हो, अगर हम उसकी गिनती कर रहे हैं तो इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. In that we have covered three different types of elasticity of demand, that is price elasticity, income elasticity and cross elasticity. First type, that is price elasticity of demand, is most important. We have already discussed it, and that is it is the ratio of a percentage change in demand of a commodity to a percentage change in price of that commodity. So EDP equal to percentage change in demand upon percentage change in price. That was price elasticity of demand. In our last session, we have already discussed 5 different types of elasticity of demand. 5 different types of elasticity of demand. Let me revise at a glance. Perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, and unitary elastic demand. Dear friends, total there were 5 types of price elasticity of demand. टोटल 5 तरह की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप दिखती है. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, relatively inelastic and unitary elastic. Friends, now today our topic is methods of measuring price elasticity of demand. बहुत पीसफुली समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत पीसफुली. क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर मुझे मेरे बिजनेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को गिनना हो तो 5 टाइप्स है, उसको गिनने की टोटल वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स. मतलब हाउ टू मेजर कि वेदर आवर बिजनेस इज इन विच टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट टू मेजर दैट वी हैव 4 डिफरेंट methods of measuring price elasticity of demand. Methods of measuring price elasticity of demand. Now let me clarify some of the different concepts of this question. Friends, ये जो 5 टाइप्स हम बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, इसमें से फर्स्ट 2 टाइप्स we cannot measure in practical life. First 2 types we cannot measure in our practical life. Why it is so? Let me clarify it. Our first type was perfectly elastic demand, जहाँ पे हमने क्लियर करके लिखा था कि it is not practical, it is possible in theory only. कोई भी चीज़ का प्राइस आप चेंज ना करो, फिर भी डिमांड या तो बढ़ती ही जाएगी या तो कम होते जाएगी. It is not practical, it is possible in theory only. तो इस टाइप को हम गिन नहीं पाएंगे. Our second type was perfectly inelastic demand. Our second type was perfectly inelastic demand. Friends, जहाँ पे हमने ये कहा था कि change in price brings about no change in demand. Change in price brings about no change in demand. बहुत पीसफुली हम सोचे, जब डिमांड चेंज हो ही नहीं रहा है तो हम गिने क्या. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम गिन नहीं सकते.
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में डिमांड चेंज हो ही नहीं रहा है तो हम गिने क्या? एंड दैट इज वाई इन प्रैक्टिकल लाइफ, in our routine business life, we can measure only 3 types of price elasticity of demand. Total we have 5 types, पर जब हम गिनने बैठेंगे तो we have only 3 types of price elasticity of demand. Whether it would be relatively elastic demand, तो ED greater than 1, or it would be unitary elastic demand, तो ED equals to 1, or it would be relatively inelastic demand, तो ED less than 1. Routine business life में we can measure only 3 types of price elasticity of demand. अगर आपका बिजनेस ED greater than 1 है तो धूम कमाई करो, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. अगर आपका बिजनेस ED equals to 1 है तो नो प्रॉफिट नो लॉस. कंटिन्यू करके देखो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कब भी तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा. पर अगर आपका बिजनेस काफी लंबे टाइम से ED लेस देन 1 दिखा रहा है, लंबे टाइम से ED लेस देन 1 दिखा रहा है, तो इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस. ताला मार के निकल लो वरना कर्ज में डूब जाओगे. ताला मार के निकल लो वरना कर्ज में डूब जाओगे. तो इन प्रैक्टिकल रूटीन बिजनेस लाइफ we can measure only 3 types of price elasticity of demand. ED greater than 1, ED equals to 1, ED less than 1. अब ये तीनों में से अपना बिजनेस कहाँ पे आ रहा है वो गिनने के लिए we have methods of measuring price elasticity of demand. Total we have 4 different methods of measuring price elasticity of demand, and in that first one is that is most important from exam point of view, most important from exam point of view, most important from exam point of view is capital A, sorry, and that is total outlay or expenditure method. Total outlay or expenditure method, that is most IMP. I am Prashant. IMP. Total outlay or expenditure method. Dear friends, total outlay का मतलब ही होता है खर्चा. आप बोलेंगे सर किसी भी बिजनेस में खर्चा गिनने से पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है. हाँ फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में खर्चा गिनने से पता चलता है, पर खर्चा किसका? बिजनेसमैन का नहीं, कंज्यूमर का. स्टिल वी आर स्टडीइंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, एज अ कंज्यूमर आप अगर अपनी जेब से मेरे बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हो, अगर मैं अपनी इकोनॉमिक्स की फीस बढ़ा देता हूँ फिर भी आप अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देकर भी मेरे पास पढ़ने को तैयार हो, इट मीन्स कि मुझे इको पढ़ाने आता है, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए. पर मेरी फीस बढ़ाने से अगर मेरी डिमांड कम हो रही है, स्टूडेंट्स अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देकर मेरे पास पढ़ने को तैयार नहीं है, तो फिर मुझे कुछ सोचना चाहिए. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड. The easiest formula is outlay equal to price into demand. Outlay equal to price into demand. ये बहुत easy formula है. एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझा पाऊँ तो सपोज ये एक पेन 30 रुपीज़ की है, प्राइस 30 रुपीज़ है, और अगर 7 पेन का डिमांड है मार्केट में 7 पेन्स, तो 30 इंटू 7 210 रुपीज़. मतलब कंज्यूमर ने अपनी जेब से 210 रुपये खर्च किए तो वो दुकान वाले की कमाई हो गई. तो आउटले इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड. कंज्यूमर ने अपनी जेब से 210 रुपये खर्च किए, क्यों? एक पेन का प्राइस 30 रुपीज़ था और 7 पेन का उसने डिमांड किया, तो प्राइस इनटू डिमांड 210 रुपीज़, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज आउटले. क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर वर्ड छोटे छोटे बच्चों को भी समझता है, तो अपनी होशियारी मारने के लिए आउटले लगना चाहिए, हमने कुछ हाई लेवल स्टडी किया है. अदरवाइज आउटले एक्सपेंडिचर इट्स सिनोनिमस वर्ड.
ओके, तो फॉर्मूला इज आउटले इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड। फ्रेंड्स, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी हैव वर्क शेड्यूल एंड वन डायग्राम, वन शेड्यूल एंड वन डायग्राम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व द शेड्यूल, just observe the schedule. Total we have 4 columns. First column price in rupees, second column demand in units, third column outlay in rupees. There is price into demand करके जो आएगा it is outlay in rupees, और उसको कंपेयर करके मुझे समझेगा कि अपना जो बिजनेस है वो कौन से टाइप में आएगा। तो टोटल वी हैव 4 कॉलम्स। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका जो प्राइस है वो हमने यहाँ पे लिखा है। आप मेरे पास आके वो चीज़ का डिमांड करते हो वो हमने सेकंड कॉलम में लिखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो खर्चा आप कर रहे हो वो हमने थर्ड कॉलम में लिखा है, और वहां से हम कंपेयर करेंगे जिससे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कौन से टाइप में आता है। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द शेड्यूल। सपोज मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसका प्राइस मार्केट में चल रहा है 10 रुपीज। सपोज द प्राइस इज 10 रुपीज। ओके, यू आर रेडी बाय 10 मिनट्स, you are ready by 10 minutes, so 10 times 100। मतलब आप मेरे बिजनेस के लिए अपनी जेब से 100 रुपया खर्च करने को तैयार हो। सपोज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आई हैव रिड्यूस्ड माय प्राइस ऑफ 1 रुपी। मैंने अपना प्राइस 1 रुपया कम कर दिया। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका प्राइस मैंने 1 रुपया कम कर दिया। ओके, सो नाउ द प्राइस इज 9 रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, lower the price, higher is the demand. So now you are able to buy 12 units. Okay, so 12 times up, it's 108 rupees. दुनिया ये देख रही है कि प्रशांत सर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया कम कर दिया, तो अब सर लॉस में होंगे। फिर थोड़ा ऑब्जर्व करो, पहले आप अपनी जेब से 100 रुपया खर्च कर रहे थे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नाउ यू आर रेडी टू स्पेंड 108 रुपीज। तो एट द फर्स्ट स्टेज outlay increases from rupees 100 to rupees 108. It shows ED greater than 1. ED greater than 1. That is relatively elastic demand. Profit making business. धूम कमाई करो। If I have reduced one more rupee price, suppose now the price is 8 rupees. You are ready to buy 14 units. So 14 8s up, it's 112 rupees. 1 रुपया और कम करके देखा। Now the price is 7 rupees. You are ready to buy 16 units. According to law of demand, you are ready to buy 16 units. So 16 7 again 112 rupees. So at the second stage, outlay is maximum and constant at rupees 112. इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा अमाउंट rupees 112. So it is maximum and constant at rupees 112. It shows ED equals to 1. That is unitary elastic demand. No profit, no loss. कंटिन्यू करके देखो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। पर उसके बाद फर्दर व्हेन आई हैव रिड्यूस्ड वन मोर रुपी प्राइस, नाउ द प्राइस इज 6 रुपीज। यू आर रेडी टू बाय 18 यूनिट्स। लॉ ऑफ डिमांड को तो हम अभी भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। प्राइस 1 रुपया कम होते गया, डिमांड 2 यूनिट बढ़ते गए। ओके, सो नाउ द प्राइस इज 6 रुपीज। यू आर रेडी टू बाय 18 यूनिट्स। 18 6 इट्स अगेन 108 रुपीज। यहाँ पे आउटले वापस कम होने लगा। पहले आप 100 रुपया खर्च करते थे, फिर 108 रुपया खर्च करते थे, फिर 112 खर्च करने लगे, अब आप वापस 108 रुपया खर्च करने लगे। फर्दर आई हैव रिड्यूस्ड वन मोर रुपी प्राइस। नाउ सपोज द प्राइस इज रुपीज 5। यू आर रेडी टू बाय 20 यूनिट्स। सो 25 अगेन 100 रुपीज। सो एट द थर्ड स्टेज outlay decreases from rupees 108 to rupees 100. Friends, at the first stage, outlay increases from 100 to 108. So ED greater than 1. At the second stage, it is maximum and constant at rupees 112. So ED equals to 1. So now at the third stage, outlay decreases from rupees 108 to rupees 100. So ED less than 1. It is relatively inelastic demand. It's a loss making business. ताला मार के निकल लो वरना कर्ज में डूब जाओगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी, बहुत बड़ी बात समझनी होगी। अक्लमंद बिजनेसमैन वो है
जो अपने बिजनेस को इसके इर्द गिर्द घुमाते रहे, 112 के इर्द गिर्द घुमाते रहे, दैट इज द हाईएस्ट पीक सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि उसके ऊपर या उसके नीचे आना, एक बाजू हुआ एक बाजू खाया। फ्रेंड्स, मैं बार बार ही बोलता हूँ, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जिगरा चाहिए, जिगरा। इट्स नॉट दैट मच इजी। व्हाई इट इज सो? क्योंकि बिजनेस इज अ साइकिल। फ्रेंड्स, बिजनेस इज अ साइकिल। ये सबके बस की बात नहीं होती। साइकिल अगर आप कभी चलाते हो तो यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इतने पतले पहिए होते हैं, ओके, उसको बैलेंस करके अपने को आगे निकलना होता है। जब तक आप पेडल मारते रहोगे तब तक साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। आप पेडल मारना छोड़ दो, आफ्टर सम टाइम साइकिल रुक जाएगी। और बंद साइकिल कभी भी अपने ऊपर किसी को भी बैठने को अलाउ नहीं करती। कोई भी एक बाजू आपको गिरा देगी। बंद साइकिल कभी भी अपने ऊपर किसी को बैठने को अलाउ नहीं करती। फ्रेंड्स, बिजनेस इज अ साइकिल। जब तक मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, तब तक बिजनेस मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। जिस दिन मुझे घमंड आ गया कि बहुत कमा चुका हूँ, क्या फर्क पड़ता है, उसी दिन यही बिजनेस मुझे लात मार के गिरा देगा। बिजनेस इज अ साइकिल। ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। आई रिपीट माई लाइन, बिजनेस जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा और सोचो, अगर मैं इसके आगे निकलता, सपोज 1 रुपया और प्राइस कम कर देता हूँ, सपोज द प्राइस विल बी 4 रुपीज पर यूनिट, यू विल बाई 22 यूनिट्स, तो 22 4 इट विल बी 88 रुपीज। मतलब जहां से मैंने बिजनेस शुरू किया था उससे भी नीचे चले गए। जो कैपिटल हमने रोका था, बात तो उससे भी नीचे चली गई, तो फिर ये बिजनेस खतरा हो गया। फ्रेंड्स, तो इट्स नॉट योर बिजनेस नाउ। इसलिए बार बार बोलता हूँ, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, एट द फर्स्ट स्टेज आउटले इंक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to ₹108, तो ईडी ग्रेटर देन 1, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एट द सेकंड स्टेज आउटले इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट ₹112, तो ईडी इक्वल्स टू 1। एट द थर्ड स्टेज आउटले डिक्रीजेस फ्रॉम ₹108 to ₹100, तो ईडी लेस देन 1, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। पर बिजनेस की ये खूबी है फ्रेंड्स, बिजनेस जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है। अक्लमंद बिजनेसमैन वो है, अक्लमंद बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस को इसके इर्द गिर्द 112 के इर्द गिर्द घुमाते रहे। ओके, क्योंकि अगर उसके बाद उसने उसका कंट्रोल छोड़ दिया तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को धक्का मार के गिरा देगा। अब ये सेम चीज अगर हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इफ आई एम कन्वर्टिंग द शेड्यूल इन दिस डायग्राम, वेरी इजी डायग्राम, वेरी इजी डायग्राम। एक्स एक्सिस के ऊपर व्यू आउटले इन रुपीस एंड वाई एक्सिस के ऊपर व्यू प्राइस एंड डिमांड। A, B, C, D is total outlay curve. First time you are seeing like this. A, B, C, D. Anybody can dance नहीं. Anybody can be duffer. A, B, C, D is total outlay curve. Total outlay curve. फ्रेंड्स, अगर ये ध्यान से देखें ना, हम जानबूझ के यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिख रहे, कोई नंबर्स नहीं दे रहा हूँ मैं। आपको ऐसा मान के चलना है, आपको ऐसा मान के चलना है कि ये जो कर्व हमने बनाया है ए बी सी डी, ये जो टोटल आउटले कर्व हमने बनाया है, तो बिजनेस जहाँ से शुरू हो रहा है घूम फिर के वहीं पे खत्म हो रहा है। तो आप ये मान लो कि यहाँ पे कहीं 100 है एक्स एक्सिस पे, बीच पे कहीं पे 108 है और यहाँ पे कहीं पे 112 है, ऐसा मान लेते हैं, जस्ट अजम्पशन। ओके, तो पूरे डायग्राम को समझना क्या है, ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज ईडी ग्रेटर देन 1। Downward movement from A to B is ED greater than 1. That is relatively elastic demand. Profit making business धूम कमाई करो। I know एक डाउट आएगा, सर जब ये डाउनवर्ड है तो ED greater than 1 क्यों हुआ? थोड़ा समझने की ट्राई करते रहे। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। पहले आप मेरे बिजनेस के लिए 100 रुपया खर्च करने को तैयार थे, अब आप 108 खर्चने को तैयार हो और फिर बाद में 112 खर्च करने को तैयार हो, तो ईडी ग्रेटर देन 1। तो डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज ईडी ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, धूम कमाई करो। उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, फिर इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, इट्स ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? 112 पे स्टिक हो गया, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट 112, तो ना बढ़ा ना कम हुआ, तो इट इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट 112 पे स्टिक हो चुका है, तो ईडी इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद यू शुड नॉट बी कंफ्यूज हियर, मैं वापस ऐसे ही बोलूंगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम सी टू डी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट ए टू बी बोल चुके हैं, तो नाउ वी शुड टेल अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम डी टू सी, ऑपोजिट जा रहा है डायरेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम डी टू सी, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम डी टू सी, इट्स ईडी लेस देन 1, रिलेटिवली inelastic demand, relatively inelastic demand, okay, it's upward movement from D to C। आप बोलेंगे सर upward movement is loss making, yes it's loss making, बताऊं क्यों loss making। पहले आप मेरे बिजनेस के लिए 112 खर्च करने को तैयार थे, फिर 108 खर्च करने लगे, वापस 100 रुपया खर्च करने लगे, ओके। तो upward movement from D to C, it's ED less than 1, it's relatively inelastic demand, relatively inelastic demand, it's a loss making business। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों का भी IQ बहुत अच्छा है, जिन लोगों का भी IQ बहुत अच्छा है, सुपर IQ है, उनको एक डाउट आना चाहिए, और डाउट ये है कि यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम B to C हमने लिखा है ED इक्वल्स टू 1, वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम B to C हमने लिखा है ED इक्वल्स टू 1, ओके। फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट सेशन जब हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें जो सेकंड टाइप था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अगर आप वो डायग्राम कंपेयर करोगे प्रीवियस आंसर का, सेकंड डायग्राम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो वहां पे हमने लिखा था कि डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वहां पे फॉर्मूला था ED इक्वल टू 0, डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ED इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बोल रहे हैं वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम B टू C, वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम B टू C, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो भी y को पैरेलल था, ये भी y को पैरेलल है, तो BC वर्टिकल मूवमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं ED इक्वल टू 1, वहां पे हमने बोला था ED इक्वल टू 0, तो या तो वो डायग्राम गलत है या तो ये डायग्राम गलत है। फ्रेंड्स, दोनों डायग्राम सही है, वो जो था इट वाज डिमांड कर्व, वहां पे क्लियर कट एक लाइन लिखा है मैंने, डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, हियर आई एम यूजिंग द वर्ड आउटले कर्व, ABCD इज आउटले कर्व। फ्रेंड्स, थोड़ा अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो तो जब आप डिमांड कर्व बोलते हो तो यू हैव टू ऑब्जर्व सेकंड कॉलम, अरे सेकंड कॉलम, लेकिन जब मैं आउटले कर्व बोल रहा हूं तो आई हैव टू ऑब्जर्व थर्ड कॉलम। जब आप आउटले वर्ड यूज कर रहे हो तो इट्स अ थर्ड कॉलम एंड दैट इज आउटले कर्व, तो इट्स नॉट डिमांड कर्व, इट्स आउटले कर्व। बहुत सारे बुद्धू स्टूडेंट्स आके अरे सर या तो ये गलत है या तो वो गलत है, अरे दोनों अपनी जगह सही है, ना वो गलत है ना ये गलत है, वो अलग बात है फ्रेंड्स कि 12th के लेवल पे इतना कुछ जल्दी समझता नहीं है। इवन व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड मुझे भी कभी नहीं समझा था कि क्या फर्क है, ओके, एंड नो वन वाज देयर टू एक्सप्लेन मी आल्सो। तो मैं ये क्लियर करूं, वो डिमांड कर्व था वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, तो वी हैव टू ऑब्जर्व सेकंड कॉलम। एट प्रेजेंट इन दिस डायग्राम इट इज आउटले कर्व, वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम B to C, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ED इक्वल टू 1, तो इट्स अ थर्ड कॉलम, ओके। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स राइट डाउन, ये हम लिख लेते हैं अभी, स्टार्ट, मैं बोलते जाऊँ आप स्टूडियो में लिखते जाएंगे। स्टार्ट विद गिव द हेडिंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मेथड मोस्ट IMP, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। अंडरलाइन, write down the formula, outlay equal to price into demand, outlay
outlay equal to price into demand. Now write down the schedule. First column, price in rupees. Second column, demand in units. Third column, outlay in rupees. Fourth column, types of price elasticity. Types of price elasticity. Now first column, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Second column, 10, 12, 14, 16, 18, 20. प्राइस एक एक रुपया कम हुआ, डिमांड दो दो यूनिट से बढ़ते गया। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर मिला है, 10 10 जा 100 थर्ड कॉलम में, 12 9 जा 108, 14 8 जा 112, 16 7 जा 112, 18 6 जा 108, 25 जा 100। पहले दो में ED ग्रेटर देन 1, बाद में ED इक्वल्स टू 1, बाद में ED लेस देन 1। Now we have to write explanation of this schedule. Explanation of this schedule. Right now, from the table we get that. From the table we get that. At the first stage, outlay increases from rupees 100 to rupees 108. Outlay increases from rupees 100 to rupees 108, which shows relatively elastic demand. Which shows relatively elastic demand, that is ED greater than 1. That is ED greater than 1. Next line, at the second stage, outlay is maximum and constant. Outlay is maximum and constant at rupees 112. Outlay is maximum and constant at rupees 112, which shows unitary elastic demand. Which shows unitary elastic demand, that is ED equals to 1. Next line, at the third stage, outlay decreases. At the third stage, outlay decreases from rupees 108 to rupees 100. From rupees 108 to rupees 100, which shows relatively inelastic demand. Which shows relatively inelastic demand, that is ED less than 1. That is ED less than 1. Friends, now quickly draw this diagram with pencil and scale. Now, below the diagram item, from the diagram we get that. From the diagram
get that ABCD is total outlay cover. Next line, downward movement from A to B. Downward movement from A to B is ED greater than 1. Is ED greater than 1, that is relatively elastic demand. Relatively elastic demand. Next line, vertical movement from B to C. Vertical movement from B to C is ED equals to 1. ED equals to 1. That is unitary elastic demand. That is unitary elastic demand. Last line, upward movement from D to C. Upward movement from D to C. Upward movement from D to C is upward movement from D to C is ED less than 1. ED less than 1. ED less than 1. That is relatively inelastic demand. That is relatively inelastic demand. That is relatively inelastic demand. So friends, that was the first most important method, total outlay or expenditure method, जहाँ पे फॉर्मूला था outlay equal to price into demand to measure price elasticity of demand. तो types of price elasticity of demand 5 थे, जिसमें से 2 हम नहीं गिन पाएंगे, perfectly elastic, perfectly inelastic. बाकी के 3 हम गिन पाएंगे. वो गिनने के लिए today we have covered first method, that is total outlay or expenditure method, के whether my business is ED greater than 1 or ED equals to 1 or ED less than 1. That's enough for this session. Please take care of yourself. Soon I'll approach you again. Thank you so much.